See, stoichiometry. In stoichiometric calculations, we do calculations of the quantities of reactants and products involved in a balanced chemical reaction. किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज का कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री में करते हैं. Quantities may be moles, it may be the calculation of volume, or it may be the calculation of number of particles, means number of atoms, number of molecules, or the number of lines. तो इन सब चीजों का कैलकुलेशन हम लोग किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस पे करेंगे. स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि रिएक्शंस को बैलेंस करना जरूरी है. Now it involves mass-mass relationship. Means mass of one of the reactants or products is calculated if mass of the other is given. अगर किसी भी एक रिएक्टिंग सब्सटेंस का मास अगर हमें पता है तो उसकी मदद से हम आसानी से दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. नेक्स्ट, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. Mass or volume of one of the reactants or products is calculated if mass or volume of the other is given. अगर किसी एक रिएक्टिव सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन है तो हम दूसरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास या वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, वॉल्यूम रिलेशनशिप. Volume of one of the reactants or products is calculated if volume of the other is given. If we have the information of volume of any of the reactants or products, we can easily calculate the volume of other reacting substances with the help of stoichiometric calculations. ठीक है, तो in these calculations we calculate the quantities of reacting substances in a balanced chemical reaction. तो see this reaction, एक reaction देखिए यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है क्या. There is 1 mole of A, it reacts with 3 moles of B and it gives 2 moles of C and 4 moles of D. Now we have the information of 5 moles of A. A का हमें 5 moles का information है. अब अगर हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन पे पूछता है कि C का मोल्स निकालिए, D का मोल्स निकालिए या B के ये कितने मोल्स से रिएक्ट करेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं. Now see, theoretically we see that here the 1 mole of A it gives 2 moles of C and 4 moles of D and here it reacts with 3 moles of B. तो अगर हमें यहाँ पे C का मोल्स निकालना है तो अप्लाई द यूनिटरी मेथड. We see that here the 1 mole of A it gives 2 moles of C. So we have 5 moles. So 5 moles will give 10 moles of C. 10 moles हमें पता चल गया C का. Similarly अगर हमें D के बारे में कैलकुलेशंस करना है, so 1 mole of A it gives 4 moles of D. So 5 mole of A will give 20 moles of D. अब हमारे पास मोल्स का इंफॉर्मेशन है. अगर हमारे पास मोल का इंफॉर्मेशन है तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, हम अगर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें सो वी गेट द मास. इफ नंबर ऑफ मोल्स में बी मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, दैट इज द मोलर वॉल्यूम, इट विल गिव द वॉल्यूम एट एसटीपी. एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर मींस 6.023 into 10^23, it will give the information of number of particles, number of atoms, molecules or ions. राइट. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे. लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, रिएक्शंस को बैलेंस होना जरूरी है. देखिए एक एग्जांपल देखिए. देखिए 1 mole of H2O2 hydrogen peroxide it reacts with 2 moles of Ki and it gives 2 moles of potassium hydroxide and 1 mole of iodine. In this case the mass of H2O2 is given and we have to calculate the mass, volume और number of particles of potassium hydroxide. अब हमारे पास जो चीज गिवन है हम पहले क्या करेंगे, इसका मोल्स निकालेंगे. तो मोल्स निकालने के लिए मुझे पता है क्या, given mass upon molar mass. So molar mass of H2O2 it becomes 2 and plus 36, so it becomes 38. So this is the moles of H2O2, right? अब हमें ये मोल्स पता चल चुका है. अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लिखाएं. हमें दिख रहा है क्या, 1 moles of H2O2 it gives 2 moles of potassium hydroxide. So this mole, that is 68 upon 38, it will give 2 into 68 upon 38 moles of पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स मिल चुका है. अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. so, इस वैल्यू को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इसके मोलर मास से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अराउंड 55, तो ये निकल आया क्या, मास निकल आया इसका. ठीक है. इसी तरीके से हम लोग क्या करें, इस नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें यानी मोलर वॉल्यूम से, तो हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा
और अगर इस नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं, इसकी मदद से आप आसानी से इन सारे कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है, तो जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं, उनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे दूसरी चीजों पर। तो जो हमारे पास नोन है, जिसका इंफॉर्मेशन हमें पता है, उसको हम लोग नोन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, तो उस केस में आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी निकालना होता है। ये अलग अलग टॉपिक में आएगा हमारा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट्स पहले आपको निकालने के बाद, उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। नाउ सी हियर, इफ वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस का अगर हमें मास पता है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका मोल्स निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/1 इंटू 1/m से मल्टीप्लाई करने पर उसका मोल्स मिल जाएगा। और मोल्स मिल जाएगा तो क्या करेंगे, जो अननोन सब्सटेंस है उसका मोल्स निकाल लेंगे। कैसे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अननोन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नोन, यानी उसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, यानी उसके जो मोल्स हैं, उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अननोन अपॉन नोन से। तो हमें मिल जाएगा क्या, अननोन का मोल्स। और अननोन के मोल्स मिलने के बाद फिर अगर उसके बारे में पूछा जा रहा है, अगर उसका मास पूछा जा रहा है, उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, उसका नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, तो आसानी से हम क्या करेंगे, इस मोल्स में अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मास मिल जाएगा। अगर इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम मिल जाएगा। इसको अगर एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें उस रिएक्टिंग सब्सटेंस का वॉल्यूम पता है, अगर कोई भी चीज यहाँ से पूछी जा रही है अननोन की, वो हम निकाल सकते हैं इस फ्लो चार्ट से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और अगर आपसे यहाँ पे मास निकालने के लिए कह रहा है तो इस फ्लो चार्ट को फॉलो कीजिए इस तरीके से। अगर ये दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है तो इस तरीके से आप इस स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। राइट, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, तो आपको फिर इस फ्लो चार्ट का एप्लीकेशन समझ में आएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 1 मोल ऑफ प्रोपेन इट रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ O2, इट गिव्स 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोपेन का है, तो दिस इज आवर नोन, ये हमारा नोन हो गया। अब इसकी मदद से इस अननोन का, दिस वन इज अननोन, इसका हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हमें देखिए फ्लो चार्ट में कहाँ पे है, हमें वॉल्यूम वाली पोजीशंस पे नोन में, तो हमने वॉल्यूम ले लिया इसका 10.4। अब हम क्या करेंगे, इसका मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1/22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर दीजिए। तो हमें क्या मिल चुका है, इस नोन का मोल्स मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अननोन का मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अननोन यानी कि 3, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नोन क्या है 1, 3/1 कर देंगे तो इसका मोल्स आ जाएगा। और इसका मोल्स आ चुका है तो हम क्या करेंगे, अब अननोन का वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें 22.4 लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हमें मिल चुकेगा क्या, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आसानी से आप क्या करेंगे, सिंगल स्टेप के अंदर इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 moles of this compound C57S 110O6 163 O2 से मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट कर रहा है। It gives 114 CO2 110 H2O plus 114 CO2, ये भी 2 बार आ चुका है, इसको करिएगा। Then 110 H2, right? Then what mass of H2O produced from 445 gram of this one? अब देखिए हमारे पास नोन क्या है, ये हमारा नोन। उस फ्लो चार्ट के अंदर देखिए अननोन क्या है, जो हमें निकालना है वो हमारा अननोन हो जाएगा। राइट, अब देखिए नोन का क्या इन्फॉर्मेशन है, मास का इन्फॉर्मेशन है। आप देखिए फ्लो चार्ट के अंदर किस पोजीशन पे है, मास वाली पोजीशन पे है। आप क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। इसका मोलर मास निकाल लीजिए, ये 57 इंटू 12, 110 इंटू 1 प्लस 6 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 16। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये लगभग आ रहा है 890। चेक कर लीजिएगा इसको। हमने क्या निकाल लिया, नोन का मोल्स निकाल लिया। मोल्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अननोन का मोल्स निकालेंगे। अननोन का मोल्स निकालने के हम क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अननोन क्या है हमारा 110, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नोन का क्या है 2। अब हम आ चुके हैं कहाँ पे, यानी कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन पोजीशन पे आ चुके हैं। देखिए फ्लो चार्ट के लिए इनटू, अब हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हमें आसानी से आंसर मिल चुका है। देखिए सही का क्वेश्चन है, आसानी से आप चाहेंगे तो सिंगल स्टेप पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट की मदद से। नेक्स्ट देखिए, 3 moles of NO2 reacts with 1 moles of H2O, this is 2 moles of HNO3 plus 1 mole of NO। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 25.5 ग्राम ऑफ HNO3। देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, इसका इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारा इस केस में नोन हो गया। और जो हमें निकालना है NO2 का, ये दिस वन इज अननोन।
राइट। अब हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है नोन का, हमें बस इसका मास है, तो हम पहले इसका मास को क्या करेंगे, इसके मास को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, यानी 1 अपॉन मोलर मास से। तो HNO3 का मोलर मास ये हो जाएगा क्या, दिस इज 14 प्लस 15 और 15 और ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 16, ये लगभग मेरे ख्याल से 63 यार। अब हम क्या निकाल चुके हैं, हम इसका मोल्स निकाल चुके हैं। अब हम इसका मोल्स निकालेंगे अननोन का, तो हम करते क्या है, अननोन का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3 अपॉन मोल्स का कितना है नोन का 2। अब हम इसका मोल्स निकाल चुके हैं। इसका मोल्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मास निकालना है मुझे, तो मास निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी NO2 का मोलर मास this is 14 and this is 2 into 16, 32 और 14 means this is 46। और इस तरीके से हमें क्या मिल चुका है, इसका मास मिल चुका है, राइट। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से आप आसानी से किसी भी तरह के कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं अपने कंपटीशंस के अंदर, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपका इस फ्लो चार्ट की मदद से काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए इस पर। थैंक यू वेरी मच।